welcome you all on behalf of JK Solar Association. I'm Mir Muzaffar Hussain, chairman of the association. In a nutshell, if you can give me 5 minutes. Yeah, please go ahead. Now, this is regarding the Prime Minister Suryaghar Bijli Yojana. You all know that this has been announced. This is a very ambitious project announced by the Prime Minister and being implemented all over the country. Okay, now, in this case, the main ingredients of the scheme are, the aim of the scheme is to go for maximum generation of electricity for nation building in gigawatts. That is a very ambitious aim. At the same time, give benefit to the consumers in reduced electricity billing and assist them. For that, in giving the benefit to the customers, a subsidy of 85,800 rupees is being provided by the central government. In addition to that, 9,000 rupees subsidy is being provided by the Jammu and Kashmir Union Territory. Now, the working of the scheme, I will just, because आम पब्लिक को पता नहीं है वर्किंग क्या है स्कीम की, मैं आपको बता देता हूँ. जो ये कंफ्यूजन्स है कि जीरो बिल है, वो है, ये है, वर्किंग है. इसमें देयर आर फोर इंग्रेडिएंट्स. जब रूफटॉप, पहले मैं उस पे आता हूँ, देन वेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई वांट टू टच अपॉन द मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो इन दिस केस. Now, there are like self-consumption mode is the first mode. Self-consumption mode is if you have a rooftop installed on your roof, अगर वो consume जितना generate वो electricity करता है, वो consume बराबर हो रही है, उतना ही load है, तो आपको import नहीं करनी पड़ेगी grid से. Number 1. Number 2 is sharing mode. Sharing mode में the load, आपके जो घर का load है वो ज्यादा है और आपकी जो जनरेशन है वो कम है. एक तो ये जो जनरेशन हो रही है वो यूज हो रही है, उसके अलावा भी आपका लोड है, तो वो ग्रिड से इंपोर्ट हो जाएगी. स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं, वो नोट करेगा आपके क्रेडिट्स, आपने कितना यूज किया, जो एक्स्ट्रा है वो आपके खाते में आ जाएगा. थर्ड थिंग इज द एक्सपोर्ट मोड. Export means it comes into picture when your generation is more than your load. What will you do with extra electricity? You pump it into the grid, and the smart meter is there. It notes down, and it is credited. And last is the import mode. Totally import by evening. Stored but not lapsed. No, that is stored, not lapsed. No, absolutely not. Now the import mode is like evenings. There is no generation. Nights, there is no generation. Cloudy days, there is less generation. Rainy days, there is no generation, less generation. So you got to import everything. Now there are two things. Number 1, winter में we all know in Kashmir 30 to 40% reduce हो जाती है generation. But usage is more. Winter में ही हमारा ज्यादा जो है इस्तेमाल होता है, खर्चा होता है. आप you come to summer now. Summer में generation is more because huge sunlight is available, long durations, and usage is less compared to the winter usage. So summer में जो आपके credit हो जाएंगे units, that can be used against the winter. जो आपने use किया है ज्यादा, वो lapse नहीं हो जाएगा, वो adjust हो जाएगा आपकी बिल में. स्मार्ट मीटर का वही काम है, नेट मीटरिंग का वही काम है. और एक और कंफ्यूजन जो यहाँ पे आम पब्लिक को है कि ये जब बिजली चली जाती है ये काम नहीं करता. हाँ, इसमें एक फंक्शन है, ये ऑटोमेटिक उस वक्त बैठ जाता है, बिकॉज ये काम नहीं करेगा. इट इज अ थिंग. क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि अगर उस वक्त ये ग्रिड में चली जाएगी बिजली, तो आपका शटडाउन है, आपका मेंटेनेंस शटडाउन है, आपका लाइनमैन ऐसे तारी कुटिस पेट तार लागन ये ग्रिड में चली जाएगी, तो उसके लिए खतरा है कि नहीं? सो रिस्क फैक्टर है उसमें. So these things, as far as the working is concerned, this is as simple as that. So आपका अगर like एक दिन में आपने 300 यूनिट जो है कंज्यूम किया, आपके रूफटॉप ने 300 यूनिट बनाया, उस दिन का आपका बिल 0 है. नहीं, KPDCL इज डूइंग ए वंडरफुल, बहुत अच्छा काम कर रही है KPDCL, और बाकी मेरे ख्याल में बाकी डिपार्टमेंट के बस का नहीं है. अभी तक 25,000 यूनिट्स 27,000 यूनिट्स इंस्टॉल किए हैं.
वो लगभग गीगावाट में बिजली आती है। आई एम श्योर दैट यू नो 1 गीगावाट इज इक्वल टू 1000 मेगावाट्स। ठीक है ना, वो ऐसा नहीं है। वो जो आप कह रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में कह रहे हैं, उनके डोमेन से बाहर निकला है, क्योंकि डिस्कॉम, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्कॉम्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इट इज नॉट कि किसी ये किसी लोकल स्टेट गवर्नमेंट का ये जितनी हिज मर्जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिस्कॉम्स आर आंसरेबल फॉर दिस। जो भी नेगेटिविटी इसमें है, वो हमारा कसूर है। नॉट ओनली वेंडर्स, वो जनरल पब्लिक का कसूर है, वेंडर्स का है, लोगों का है। इसमें स्कीम की कोई गलती नहीं है, स्कीम में कोई नेगेटिविटी नहीं है, स्कीम में ओनली पॉजिटिविटी इज देयर। दैट्स व्हाट वी शुड प्रमोट, नंबर 1। नंबर 2, कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए हमारी एसोसिएशन का मेन मकसद ये है, मेन मकसद, आई विल रिपीट, मैं रिपीट करता हूं, मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में भी बताया, मेन मकसद है कि हर खासा आम को अवेयर करना कि स्कीम क्या है, स्कीम क्या है। इसमें मैं बताता हूं आपको रोल, वेंडर का रोल, केपीडीसीएल का रोल, कंज्यूमर का रोल। केपीडीएसएल का रोल है मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, कमीशनिंग, इंक्लूडिंग नेट मीटरिंग, नंबर 1। नंबर 2, वेंडर का रोल है कि पहले जब उसको कस्टमर कॉन्टैक्ट करे, जो कि नेचुरली वेंडर सारे रजिस्टर्ड है, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया, जब जेपीडीसीएल ने किया, किसने किया, सारे वेंडर्स रजिस्टर्ड है, उसको कॉन्टैक्ट किया तो वेंडर चला गया उसके पास। सबसे पहले क्या वेंडर देखेगा, सुनिए, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब आया कि छत पर छत आप ना, अगर बोइन तल छु मकान तथ मा पे नंबर 1 वही, अगर अमिस वेंडर वन ना करिए तो ये जो ये है, ठीक है, उसमें दैट इज क्वेश्चनेबल। एक तो वेंडर में फिजिबिलिटी है, ओरिएंटेशन पैनल की कहाँ होगी, स्क्वायर फीट एरिया अवेलेबल है, और ये फिजिबिलिटी में आ गया। उसके बाद वेंडर सेटिस्फाई हो गया कि नहीं लग सकता है, इन कंसल्टेशन विद केपीडीसीएल जो कि मॉनिटर कर रही है इसको। नंबर 2 इज वेंडर ने रजिस्ट्रेशन किया, कस्टमर तैयार हो गया इंस्टॉलेशन के लिए, तो वेंडर को इंस्टॉल करना है सिस्टम स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, जो कि स्पेसिफिकेशन एमएनआरई और केपीडीसीएल ने ऑलरेडी मुहैया की है। स्पेसिफिकेशन की क्वालिटी मटेरियल, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइमली इंस्टॉलेशन। मैक्सिमम 1 महीने के अंदर वो इंस्टॉलेशन हो जानी चाहिए। उसके बाद केपीडीएस उसको इंस्पेक्ट करेगा, वो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी है, वो क्लियरेंस दे देगा कि यस दिस इज ओके। उसके बाद यहाँ काम नहीं रुकता है, उसके बाद 5 साल की इसमें फ्री सर्विस है, फ्री सर्विस। कोई फॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, वेंडर इज रेस्पॉन्सिबल। उसके बाद वहीं पे नहीं रुकती है बात, उसके बाद 25 साल की कंप्रेहेंसिव परफॉर्मेंस वारंटी है सिस्टम की, 25 इयर्स, इमेजिन। तो ये शॉर्ट टर्म गेन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो तो सारा खेल वही है, कितना इंपोर्ट कर रहे हो आप, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो वेंडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सिस्टम लगाना, उसका सर्विस सपोर्ट 5 साल का दे देना, 25 साल की कंप्रेहेंसिव वारंटी दे देनी, ये एज फार एज वेंडर इज कंसर्न। नंबर 1, हमारी एसोसिएशन का रोल, हमारी एसोसिएशन में जो भी वेंडर्स है, हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। अगर हमारी एसोसिएशन में जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से आपको कभी शिकायत हो, कोई शिकायत का मौका आए, या कोताही हो, या लापरवाही हो, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट वेंडर, नंबर 1। नंबर 2, आपकी वसादत से मैं बाकी वेंडर्स जो एसोसिएशन के मेंबर्स नहीं है, उनको दावत देता हूं कि वो एसोसिएशन ज्वाइन करें हमारी, सो दैट एक प्लेटफॉर्म पे हम सारे खड़े हो जाएं, सो दैट कि वो कहते हैं ना कि वन पॉइंट कॉन्टैक्ट पर्सन, 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजेशन रहे, कोई भी शिकायत हो। बहुत सारे वेंडर्स है जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स नहीं है, अगर उनसे कोई कोताही हो, लापरवाही हो, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। मैंने अर्ज किया ना, मैंने मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी इज कश्मीर पावर डेवलपमेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ठीक है ना। उनके एमडी साहब से हमने लास्ट वीक वी हैड ए वेरी गुड मीटिंग विद एमडी महमूद साहब से, ही इज वेरी कोऑपरेटिव आल्सो, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड आल्सो। उनसे हमने ये पॉइंट भी रेज किया, उन्होंने किसी डीलर के बारे में कोई शिकायत आई थी, उन्होंने शायद उसको ब्लैक लिस्ट भी किया है, उन्होंने वी कैन नॉट ब्लैक लिस्ट ए वेंडर, वी कैन नॉट, इज नॉट पार्ट एंड पार्सल, एंड इफ ही इज विल टेक एक्शन, एंड आई एम टेलिंग यू बाय द वे, बेसिकली वो भी एम्पेलेड वेंडर है जिसको जेपीडीसीएल ने किया है। चलो उसको देखिए डिले हो गया, उससे कैसे हुआ क्या नहीं, लेकिन वो आज की डेट में फिर से वापस लगा रहा है। इनफैक्ट उसने ये भी बोला है कि जिसको जितने पैसे मेरे पास है उसकी मैं आप उनको कस्टमरों को
इंटरेस्ट भी दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं बताऊं एक्चुअली क्या हुआ, लोगों को भी ये देखना चाहिए who is working in this field since from last 15 years. We are all, जो हम सब है ना, हम 15 साल से इस फील्ड में जो देखिए आप इसमें कौन लोग घुसे हैं, कहाँ से रजिस्ट्रेशन लाके करके आए हैं, तो बैठे हैं इसमें फील्ड में। उस वक्त उस बंदे ने ऐड दिया था 25,000 रुपए मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। लोग भागे डिस्काउंट के पीछे, वो भागे लैपटॉप के पीछे, वो भागे 25,000 के पीछे। आज वो इस मुसीबत में पड़े तो हमने थोड़ी उनको बोला प्लीज, पहले उनको देखना चाहिए ये बंदा इस फील्ड का है, कब से काम कर रहा है, इसका सेटअप कैसा है। अगर मैं अपने पैसे, अगर मैं अपने और वो बंदा एसोसिएशन से लिंक्ड है कि नहीं, आज वो बोल रहे हैं कि सब नहीं है। लोग खुद जाते हैं, जब लालच में पड़ जाते हैं ना, उनको देखना चाहिए कि मुझे क्या लगाने वाला है। ये बंदा इस काम का है, ये कब से इस काम में बैठा है। कल उसने दुकान खोली, रजिस्ट्रेशन लाई, वो ले गया। देखिए सर, लोग उनकी भी गलती सर, ना कि उनकी कोई एक्सपीरियंस देखते हैं। जेपीडी अकाउंटेबिलिटी के बारे में मैं ये बता दूंगा कि हमारी जो एसोसिएशन है, जो इसके मेंबर्स है, वी आर अकाउंटेबल। वी आर नॉट अकाउंटेबल फॉर दोज वेंडर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ आवर एसोसिएशन, एज सिंपल एज दैट। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा आपसे कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को देखना है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आप इधर टीवी लेने जाते हैं, कार लेने जाते हैं, आप नहीं देखते हैं कौन वेंडर है, कौन खरीदार है, उसको देखना चाहिए। यहाँ पे जो भी हमारी एसोसिएशन में मेंबर्स है, they all have decades of experience. They will never do anything unethical. उसकी गारंटी हम ले लेते हैं। लेकिन जो वेंडर हमारी एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे। यहाँ तक कि आप कुछ वेंडर्स देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो हमारे बारे में कुछ कमेंट करेंगे, उसका मतलब है they have vested interest. अदरवाइज अगर वो फ्रैंक होते, ऑनेस्ट होते, सिंसियर होते, वो चुप करके हमारी एसोसिएशन में आ जाते और एक साथ हम सारे काम कर लेते। मैं आपके तवज्जुह से ये आम पब्लिक को ये कहना चाहता हूं कि वेंडर सिलेक्शन में खास ध्यान दे दे और देखे तजुर्बा वेंडर का, उसकी ऑनेस्टी, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी ऑनेस्टी, उसका खासकर तजुर्बा। जो एक महीने का भी तजुर्बा नहीं है, वो नेचुरली वो उसके पास चला जाएगा, किसी लालच में आ जाएगा तो वो काम तो खराब ही हो जाएगा ना। सो उस सूरत में भी अगर वेंडर सिलेक्शन में हमारी एसोसिएशन की मदद चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, हम तैयार हैं। हम नॉर्थ भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम साउथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम सेंटर भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे मेंबर्स नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। हमसे राब्ता करें, हम उनको परफेक्ट वेंडर गाइड करके उनको परफेक्ट वेंडर का वो गाइड करेंगे कि इसके पास जाइए, आप ये सिस्टम लगा दीजिए। मीडिया इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ओवरऑल जो है वेलबींग, ठीक है ना, ओवरऑल वेलबींग। मीडिया प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Recently, a video has floated on social media. I don't know whether he is member of your fraternity or he is a fake media person. He has maligned the image of one of our esteemed vendors who is giving service for past 10 to 15 years. Fake. All was fake. We have instigated an investigation and an FIR has been lodged against him. Investigation has been instigated. We will take necessary action. My point is, you as a media fraternity, responsible fraternity, don't spread the negativity about the scheme. Spread positivity about the scheme. If there is any vendor or any consumer, जो इन्वेस्टिगेट फर्स्ट, उसकी शिकायत को आप पहले इन्वेस्टिगेट कर दीजिए, हमसे राब्ता कर लीजिए, ये सच है कि नहीं है, कितना झूठ है। इट इज इजी टू गो ऑन ए सोशल मीडिया, वो वायरल कर दो, वीडियो वो कर दो। वो बंदा हमारा 15 साल से वो काम कर रहा है, 15 साल से he is giving pure, honest and sincere services to the whole valley and he is member of our association. हमने इन्वेस्टिगेट की है, इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ FIR भी किया है। So you have to be careful about that. मेरा रिक्वेस्ट ये है।